Hello guys, I am Samir Saxena and you are watching online classes came to the number one quota. Dear students, in the sequence of videos, today we will start our part 4, that is operations on matrices. You already know about operation on matrices. You have already studied in previous classes operations on number systems, that is addition of two numbers to real numbers, addition of two real numbers, subtraction of two real numbers, multiplication and divisions. Today we start operations on matrices. Like number system, two matrices can also be add, subtract, multiply, and we can find its inverse also. So let me start. Addition of two matrices. दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकें. ये कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ पाएंगी, तभी ऐड हो पाएंगी जब उसमें ऑर्डर सेम हो, ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकें. लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस each of order m into n, then their sum a plus b is a matrix of order m into n and is obtained by adding the corresponding elements of a and b. That means first element a11 of matrix A is added in a11 element of matrix B. Similarly, all other elements are also added. Thus, if A equals to aij is a matrix of order m into n and b equals to bij is a matrix of order m into n, then their sum a plus b is defined as matrix C equals to Cij m into n, where Cij is equal to aij plus bij for all possible values of I and j. Here we will give value of ij. C11 means a11 plus b11. C12 means a12 plus b12. Similarly, in all elements of Cij. So here I and j takes the value. I takes value from 1 to m and j takes value 1 to n according to the order of matrix. Very important note, the addition of two matrices is defined only when they are of the same order. For example, A equals to matrix 1, 2, 3 in first row, 4, 5, 6 in second row. So its order is 2 into 3. There is here 2 rows and 3 columns. In matrix B, यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम है. फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6, 5, 4 और सेकंड रो में जो एलिमेंट हैं वो हैं 3, 2, 1. जब हम इनको ऐड करेंगे तो A मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1, 1 एलिमेंट B मैट्रिक्स का जो 1, 1 एलिमेंट है उसमें ऐड हो जाएगा 1 प्लस 6. इसी तरह इसका 1 जो सेकंड एलिमेंट है 1, 2 जो एलिमेंट है वो है आपका 2 है. इसमें भी जो 1, 2 एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में वो 5 है, ऐड हो जाएगा 2 प्लस 5. सिमिलरली 3 प्लस 4 एंड इन सेकंड रो 4 प्लस 3, 5 प्लस 2 एंड 6 प्लस 1. सो वी विल गेट 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7 in first row and 7, 7, 7 in second row. Now, properties of matrix addition. एडिशन की प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे नंबर सिस्टम के इसमें भी है. दो मैट्रिक्स का जो है हम ऐड करते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती हैं. यदि मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन हो, इफ A equals to aij of order m into n, B equals to bij of order m into n are two matrices of the same order, then A plus B equals to B plus A. तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए तभी पॉसिबल है जब इनका एडिशन डिफाइन हो रहा है. यदि एडिशन डिफाइन नहीं है तो फिर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा. कम्यूटेटिव लॉ तभी फॉलो होगा जब एडिशन डिफाइन है. सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ. फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A इक्वल्स टू aij m into n, B इक्वल्स टू bij of order m into n and C इक्वल्स टू Cij of order m into n of the same order m into n. यहाँ पर भी ऑर्डर सेम होगा तभी पॉसिबल है एसोसिएटिव लॉ. तो हम पहले दो मैट्रिक्स A प्लस बी को ऐड करें, बाद में थर्ड मैट्रिक्स C
तो हमें वही मिलेगा रिजल्ट जो हम लास्ट दो मैट्रिक्स बी प्लस सी को ऐड करें, बाद में ए को ऐड करें, डेट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. Now our third property is existence of additive identity. किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए. जैसे नंबर में हम जीरो ऐड करते थे, किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलता था. ऐसे मैट्रिक्स में यदि हम उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा. ए में जिसका ऑर्डर m/n है, अगर हम उसमें नल मैट्रिक्स जिसका भी ऑर्डर m/n है ऐड करें तो वापस हमें a मिलेगा. लेट a इक्वल्स टू aij be a matrix of order m/n and o be a null matrix of order m/n, then a plus o equals to o plus a is equal to a. Here o is the additive identity for matrix addition. पूछ सकता है वो आपसे एग्जाम में कि एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपको तो लिखना होगा नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स. ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए. जैसे नंबर के अंदर हम 2 में क्या ऐड करें कि जीरो मिल जाए, -2. ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी इसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम ऐड करें a प्लस a माइनस a, तो हमें नल मैट्रिक्स प्राप्त होता है. A equals to aij be a matrix of order m/n. Then we have another matrix minus a is equal to minus aij m/n such that a plus minus a equals to 0 or minus a plus a equals to 0 is equal to o, where o is the null matrix. Here also you can ask in CBSE, minus a is the additive inverse of matrix A और नेगेटिव ऑफ ए. माइनस ए जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है. ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में एक मैट्रिक्स देकर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन लॉस. इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी. यहां हम दोनों तरफ माइनस प्री ऐड कर देंगे हम -a, तो -a प्लस a नल मैट्रिक्स हो जाएगा. तो आपको o मिलेगा, o प्लस b इक्वल्स टू o प्लस c, दैट इज b इक्वल्स टू c. दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. सिमिलरली इन राइट कैंसिलेशन लॉ b प्लस a इक्वल्स टू c प्लस a, तो यहाँ a कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट वाला जो है पार्ट है a कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू c. दैट इज राइट कैंसिलेशन लॉ. नाउ वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस. डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहां पर भी एडिशन की तरह कंडीशन यही होगी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो. जब ऑर्डर सेम होगा तो हम कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इफ a इक्वल्स टू aij is a matrix of order m/n and b equals to bij is a matrix of order m/n, then difference a minus b is defined as matrix D equals to dij of order m/n, where dij is equal to aij minus bij. यहाँ दोनों तीनों एलिमेंट्स dij, aij, bij, इनमें ij है. We will give the value to I and j. We will give value I from 1 to m and j from 1 to n. That is d11 equals to a11 minus b11. Similarly we can find all other elements. For example, a equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. In first row there is 1, 2, 3 elements. In second row 4, 5, 6. Similarly in matrix B, that is also of order 2 into 3. First row is contain 6, 5, 4 and second row contain 3, 2, 1 elements. Then a minus b equals to, here also corresponding elements. यहाँ भी हम corresponding elements को सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहला एलिमेंट जो है 1, 1 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए का क्या है 1. दूसरी मैट्रिक्स में 1, 1 एलिमेंट क्या है 6, तो 1 माइनस 6. ऐसे सेकेंड 1, 2 एलिमेंट क्या है 2 मैट्रिक्स ए का. मैट्रिक्स बी का 1, 2 एलिमेंट क्या है 5, यहाँ 2 माइनस 5 तो -3. सिमिलरली 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस
3 1, 5 minus 2 3, 6 minus 1 equals to 5. इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ डिफरेंस भी जो है वो सेम ऑर्डर का है, 2 into 3 ऑर्डर का है। नाउ विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। जब हम स्केलर क्वांटिटी कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1 है, -2 है, हाफ है, 3 है, किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेट A equals to Aij be a matrix of order m into n and k be any scalar number, then the matrix obtained by multiplying every element of A by k is called the scalar multiple of A by k and is denoted by ka. Thus k equals to k Aij m into n. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स 3 into 3 की कोई मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो है 1 2 5, सेकंड रो है -2 3 4, थर्ड रो है 1 2 -1, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें उसको 3a, तो यहाँ हर एलिमेंट जो है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 तो फर्स्ट रो में हो जाएगा 3 6 15, सेकंड रो में -6 9 12 और थर्ड रो में 3 6 -3। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम जैसे एडिशन में हम देखा, यहाँ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। और सिंपल प्रॉपर्टी है कि लेट A equals to Aij be a matrix of order m into n and B equals to Bij matrix of order m into n are two matrices of the same order m into n and k and l are scalar quantities. Then अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें पहले, फिर इसको k से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मिलेगा k प्लस k भी। सेकेंड है, यदि हम दो नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने लिया 2 -3 इंटू ए, तो 2a माइनस 3a, यहाँ पर k प्लस l इंटू ए, तो k प्लस l है। सिमिलरली अगर दो नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 into 3 और बाहर मैट्रिक्स a है, तो 2 into 3 या 2 3a या 3 2a, जिसको हम बोल सकते हैं KLA इक्वल्स टू KLA और LK। फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस के को से मल्टीप्लाई करना है को, तो माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस KA या K इंटू माइनस A। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से तो हमें A ही मिलेगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से तो हमें -A मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसके मल्टीप्लिकेशन की, जो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स लेके हम समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसके ऊपर आप सिंपल आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।